Now, our next topic is internal control for the purchases. What happens, क्रेडिट सेल के पॉइंट्स देखो, आप डेटर्स के पॉइंट्स देखो, परचेजेस के देखोगे तो आपको सिमिलर लगेगा. तो सर हेडिंग्स विल बी द सेम बट इंटरनल मैटर विल गेट चेंज. ठीक है, it will get changed, but if you see the headings remains the same. In the credit sale also we saw the very first one was a division of the work. Here also we have a very first point division of the work, that the proper division should be among the sales department, stores department. यहाँ पर proper division कहाँ पर होना चाहिए? There should be a proper division of the work among the different employees as well as department. परचेज डिपार्टमेंट का अलग से रिकॉर्डिंग, स्टोर्स डिपार्टमेंट का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का. इवन इफ द वर्क इज बीन कैरिड विद इन द डिपार्टमेंट, तो इट शुड बी फर्दर बाइफर्केटेड अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज. So always remember, different persons should be placed for the purchase order, for receiving the goods, for making the payment to the creditors. ठीक है, so the very first point is there should be a proper division of the work. Next one is a proper procedure should be followed. Now purchase department first should invite the tenders. क्या पहले क्या होता है, टेंडर्स होते हैं, जो सबसे लोएस्ट हमें कोटेशन भेजता है, हम उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, परचेज ऑर्डर. सो अ प्रॉपर टेंडर इनवाइट्स होती है. ऑन दैट बेसिस परचेज का रिक्विजिशन रिसीव्ड होता है फ्रॉम द फैक्ट्री टू, और यू कैन से द स्टोर्स. देन द मटेरियल्स आर रिसीव्ड इन द गोडाउन, कि हमने जो अप्रूवल किया वो रेट से फिर इट इज रिसीव्ड इन द गोडाउन. Then it is properly inspected कि जो goods हमने मंगवाए और जो goods आए वो proper है या नहीं. Before acceptance an inspection is been done. And then later stage पे payment of this purchase will be done by an accounts department. They will be making the payment only and only after verifying that they have received the goods received note or not. जब भी आपको goods receive होंगे ना, तो आपको उसके साथ goods receive note आती है. ठीक है, और सेकेंड आता है इंस्पेक्शन नोट्स. आपको ये चेक करते हो कि जो क्वालिटी है और जो यूनिट्स आपने ये ऑर्डर किया है वो सेम है या नहीं. सो प्रॉपर प्रोसीजर फॉर दिस नीड्स टू बी फॉलोड. नेक्स्ट वन इज क्रॉस चेकिंग. एज अभी ये फर्स्ट पॉइंट से लिंक कर रहा है. सी if there is a proper division of the work among the purchase order, say goods receiving departments, inspection report, अगर different people ने अगर वो बनाया होंगे तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे के ऊपर क्या रख सकते हैं, हम चेक भी रख सकते हैं. फ्रॉड्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे. Why? Because of the division of the work among the employees. So just relate it up. The points are the same. Internal content is getting changed. Next one. Now there should be a change in the duties. See, duties of the concerned employees. It can be the देखो purchase है तो purchase officer होगा, store keeper होगा. उनकी duties properly rotational basis पर होनी चाहिए. Time to time पर rotation होना भी जरूरी है. अगर transfer की need है तो there should be a proper transfer should be given to them. Then we have an annual leave. The same way, जो भी concerned employees है, जो भी store keeper है, we need to ask them to go for the leaves at least once in a year. So that अगर हमें मुझे वहां से डिटेक्ट करना है कोई भी एरर्स या तो फ्रॉड्स, तो आई कैन इजीली डू इट अप. सो आई शुड सेंड माय एम्प्लॉइज फॉर द लीव एज वेल. नेक्स्ट इज एक्सेस टू द बुक्स. नाउ एवरीवन शुड नॉट बी गिवन द एक्सेस. ठीक है, सबको एक्सेस नहीं होना चाहिए. या तो आप परचेज ऑफिसर को दो, अभी जैसे अकाउंट्स का कुछ करे तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ही होना चाहिए. ठीक है, सबको उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए वो बुक का. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर एक्सेस टू द बुक्स, एंड वो भी to the concerned person, not for the access should not be given to all of the employees. Next is prompt recording and the proper recording. We can merge these points and we can do proper as well as the prompt recording should be there. जितने भी goods आपको receive हुआ है properly recorded है या नहीं. Right quantity should be entered against the right party. ऐसे नहीं कि आपने कोई भी पार्टी का नाम लिख लिया, उसके सामने जो अमाउंट लिखा वो गलत लिखा. डेट शुड बी सीन के प्रॉपरली द डेट इज रिटर्न प्रॉपर और नॉट. फिर हमें गुड्स रिसीव नोट मिली है तो उसके ऊपर सारे अमाउंट्स है, जो नंबरिंग्स है वो करेक्ट है या नहीं. ठीक है, जैसे ही जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है इमीडिएटली यू जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग इन द स्टॉक बुक्स. स्टॉक बुक से कहां पर वो रिकॉर्ड होगा, परचेज जर्नल में. परचेज जर्नल में वो पोस्टिंग कहाँ होगा, क्रेडिटर्स में. अगर क्रेडिट परचेज है तो फिर क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा. कैश परचेज है तो इट्स फाइन, अगर ना क्रेडिट परचेज होगा तो क्रेडिटर्स लेजर में यू हैव टू सी देयर बैलेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज. सी, परचेज शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. एंड हु विल बी अडॉप्टिंग दिस पॉलिसीज? ऑब्वियसली मैनेजमेंट विल बी अडॉप्टिंग दिस प्रैक्टिसेस.
उनको ये देखना है कि कट ऑफ ट्रांजैक्शंस की ट्रीटमेंट प्रॉपर है या नहीं। अगर कुछ मटेरियल में शॉर्टेजेस हुआ है तो वो शॉर्टेज का रिकॉर्ड प्रॉपर लिखा या नहीं। अगर हमने कुछ परचेज रिटर्न किया है तो कितनी क्वांटिटीज एंड अमाउंट, उसका अमाउंट कितना था, प्रॉपर सिग्नेचर्स थे या नहीं, क्रेडिट नोट वाज इश्यूड और नॉट प्रॉपरली, अगर हमें डिस्काउंट्स मिला है तो वो डिस्काउंट्स की एंट्रीज वाज बीन डन और नॉट, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से किया था या नहीं। नेक्स्ट वन है सेफ गार्डिंग। सी, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक एंड द क्लोजिंग स्टॉक होगा, इट शुड बी प्रॉपरली सेफ गार्ड, इट शुड बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी। ठीक है, स्टॉक इन द हैंड शुड बी रेगुलरली वेरीफाइड। मैंने आपको क्रेडिट सेल्स में एग्जांपल दिया ना कि अगर आप सिर्फ वो जो भी स्टोर कीपर के इसमें रखोगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि हाँ कभी कभी कोई मटेरियल उसमें से गायब होते जा रहा है, डिफेक्ट्स निकलते जा रहे हैं उसमें से। सो सी अल्टीमेटली सी द हेडिंग्स आर सेम, बट आप सिर्फ क्या करोगे, इंटरनल कंटेंट यू विल चेंज इट अप अकॉर्डिंग टू द आंसर विच इज बीन आस्क्ड, यू जस्ट चेंज इट अप। नेक्स्ट पॉइंट इज एरर्स एंड द फ्रॉड्स। सी, परचेज जर्नल है, स्टॉक बुक्स है, इट शुड बी प्रॉपरली चेक जस्ट टू डिटेक्ट द एरर्स, के कुछ रिकॉर्डिंग में तो एरर्स नहीं हुआ है ना, कुछ रिसीव के टाइम पर तो एरर्स नहीं हुआ है ना। अगर एरर्स हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करो, रिकनसाइल करो उसको प्रॉपरली, मिस अप्रोप्रिएशंस नहीं होने चाहिए। सो यू कैन इजीली यू कैन रिकनसाइल विद अ फिजिकल स्टॉक। जैसे आपको बुक में दिखा रहा है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स है, तो यू गो इन द गोडाउन एंड यू फिजिकली वेरीफाइड ये यस 500 यूनिट्स आर देयर और नॉट। ठीक है, तो देयर शुड बी फिजिकली जाओ, फिजिकल स्टॉक्स को वेरीफाई करो, रिकनसाइल करो। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि वी कैन प्रिवेंट द एरर्स एज वेल एज द फ्रॉड्स। नेक्स्ट वन इज रिकंसिलिएशन एंड कंफर्मेशन। सी, क्रेडिटर्स का अकाउंट प्रॉपरली रिकंसाइल करना चाहिए। अभी क्रेडिटर्स है तो वी नीड टू गिव देम द पेमेंट, तो शी देयर शुड बी अ प्रॉपर कंफर्मेशन विच शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम देम, और वो भी एटलीस्ट एक साल में तो हमें देखना ही चाहिए कि प्रॉपर पैसा हमें मिल रहा है या नहीं, बिकॉज हियर वी हैव टू मेक द पेमेंट। अगर हम टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सप्लायर्स हमें डिस्काउंट्स भी नहीं देंगे, हमें वो टाइमली ये भी नहीं देंगे, मटीरियल्स भी नहीं मिलेगा। So there should be a proper payment as well as proper payment should be received from the creditors. ठीक है, so proper payment is made to the suppliers as per the credit terms or not. There should be a proper payment which should be made. So this was all about your internal control for the purchases.